فلسطینی مجاہدین نے جس حکمت عملی کے ساتھ اور جس بھرپور تیاری کے ساتھ اپنی سرزمین کو آزاد کرنے کے لیے اقدام کیا ہے، ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کو ان کے پشت پہ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ OIC کا فوری طور پر اجلاس بلانا چاہیے اور نئے زاویے کے ساتھ اپنا موقف متعین کرنا چاہیے۔ یہ جو رویہ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوتی رہیں اور امریکہ قوت بازو کے ساتھ عرب ممالک کے گردن مروڑ کر ان سے اسرائیل تسلیم کرا رہا تھا، پاکستان پر بھی اس کا دباؤ رہا۔ یہاں بھی پچھلی حکومت نے یہاں اس لابی کو آزاد چھوڑا جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کہ یہاں پر ترغیب دلائی، اس کی لابنگ کرتے رہے، میڈیا پہ آتے رہے، لیکچر دیتے رہے، پاکستان کی معیشت کی بہتری کا خواب اسرائیل کو تسلیم کرنے میں دیکھتے رہے۔ تو یہ سراب تھا، یہ ایک خواب تھا جو آج اس حملے نے اس خواب کو پریشان کر دیا ہے اور اس سراب کو انہوں نے بے نقاب کر دیا ہے۔ ان حالات میں امت مسلمہ کا فرض ہے کہ سیاسی لحاظ سے بھی ان کی مدد کرے، مالی لحاظ سے بھی ان کی مدد کرے، اور جس طرح انہوں نے اپیل کی ہے کہ پوری عرب دنیا اسرائیلی سرحدات کی طرف مارچ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے عالم عرب کو اس پر لبیک کہنا چاہیے، ان کے پشت پہ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اسلامی دنیا کو ایک قوت بن کر، ایک جسم بن کر اس مسئلے پر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے۔ پاکستان کا موقف بھی کوئی زیادہ اطمینان بخش نہیں آیا ہے اور اس میں بھی کچھ بینابین کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ مودی نے بڑے وضاحت کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کو بڑے غیر مبہم الفاظ کے ساتھ فلسطین کے ساتھ، فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پاکستان کا جو اس مسئلے کے حوالے سے اساسی موقف رہا ہے اس کو ہم کئی حوالوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ 1940 کی قرارداد، جس میں اس بات کا اضافہ کیا گیا تھا اور خود قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا اضافہ کیا تھا کہ فلسطینی سرزمین پر یہودی بستیاں قائم کرنے کا جو عمل ہے وہ ناجائز ہے اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سن 1967 میں اور اس کے بعد 2 جنگوں میں پاکستان کی فوج وہاں لڑی ہے، پاکستان کی فضائیہ وہاں لڑی ہے، ہمارے پاکستانی پائلٹس نے ان کے جہاز گرائے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کا ایک زمانے میں روش رہی ہے، ہمیں اس روش پر واپس آ جانا چاہیے، کم از کم ہمارا موقف واضح ہو جانا چاہیے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے واضح موقف کے ساتھ ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا اثر رسوخ ضرور ہوتا ہے اور اس کو اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا چاہیے بڑے وضاحت کے ساتھ، ابہام نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ کیا تاریخ بیان کروں، ہم نے سارے کام اکٹھے کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کابینہ میں بیٹھ کر نئی مردم شماری کے تحت فیصلے میں شریک رہی ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرائے جائیں۔ اب نئی مردم شماری کے تحت پھر نئے حلقہ بندیاں ہوں گی
नई हल्का बंदियों पर आपको लोगों को एतराज़ का नया वक्त देना पड़ेगा। ये सारे मामलात उसके साथ उसके लवाज़िमात में से है। अब अंदर जो है वो एक फैसला करके आते हैं, फिर बाहर आकर सियासत करने के लिए वो दूसरी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में हमें साफ गोई से काम लेना चाहिए, इत्तिफाक राय के साथ, नई मरदमशुमारी के तहत सब ने इत्तिफाक किया था। इलेक्शन कमीशन उसी के तहत काम कर रही है। इबहम क्यों पैदा किए जा रहे हैं? इलेक्शन कल कराओ तो हम कल भी तैयार हैं, लेकिन अगर हो सके। इस पर मेरे ख्याल में ज़रा इंतजार करना चाहिए इस सवाल के जवाब के लिए। साहब नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आ रहे हैं, पहले भी तारीखों का जो है वो ऐलान किया जाए, और आपके बड़े अच्छे रवैये हैं नवाज शरीफ साहब के। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर नहीं करेगा तो खान तक जो है वो ज्यादती होगी। दूसरी जानिब लेवल प्लेइंग की भी बातें होती है, तो क्या देख रहे हैं कि इलेक्शन नजर आ रहे हैं JUI पे? इलेक्शन तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर मैंने इतनी सी बात की है कि अगर जनवरी के आखिर में होंगे तो आधे मुल्क में तो बर्फबारी होगी, जहां आबादी ही नहीं है। आप फौजदार से ले लें पूरा बलूचिस्तान, फिर आप वज़ीरिस्तान से ले लें चतराल तक, फिर वहाँ से ले लें आप पूरा स्वात, कोहिस्तान, एबटाबाद, मरी तक। ये सारे इलाके वो हैं कि जहाँ आबादी नहीं होती इन दिनों में, वो उतर आते हैं अपने इलाकों से और वहाँ बर्फ़ होती है। तो क्या ये लोग वोट का हक़ नहीं रखेंगे? ख़वातीन के बारे में तो आप कहते हैं अगर इतनी फ़ीसद वहाँ पोलिंग स्टेशन पर वोट न पड़े तो दोबारा कराए जाएंगे। जहाँ इंसान ही ना हो उनका कोई हक़ नहीं है कि वो वोट डालें। देखिए जी उनके साथ जो रवैया रवा रखा गया है वो हमारी रिवायात के ख़िलाफ़ है। न हमारी कौमी रिवायात इसकी तायीद कर सकती है, न हमारी इस्लामी रिवायात इसकी तायीद कर सकती हैं। आप अपने घर में एक शख्स को मेहमान ठहराते हैं और मेहमान को जब आप 1 साल के बाद भी सही घर से निकालते हैं और लात मार के निकालते हैं तो मेहमानदारी तो गई आपकी। तो हमें सलीक़े के साथ कोई एक पॉलिसी बनानी चाहिए। जबर और तशद्दुद जो है वो ये मसले का हल नहीं है। पहले अपने मसाइल तो हल करो, अपने मुल्क को तो ठीक करो, फिर दूसरे मुल्क के साथ पंगा लो। जी जी, ये ठीक है, लेकिन हुकूमत ने थोड़ी भेजे हैं वहाँ से। अगर वहाँ से आए हैं तो मैं कहाँ था, मैंने क्यों नहीं रोके? और फिर क्या वहाँ शिकायत नहीं है? वहाँ जो हमले होते हैं उसमें पाकिस्तानी नहीं पकड़े जाते? तो ये जो तालिबान का तस्वुर है या जो एक मुसल्लह ग्रोहों का तस्वुर है, ये आपस में गड़बड़ हैं। इनको वहाँ जाने का रास्ता कैसे मिलता है, उनको वहाँ से आने का रास्ता कैसे मिलता है? अगर उनका कसूर है तो फिर हमने क्यों नहीं रोका? अगर हमारा कसूर है तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? ये सवाल दोनों तरफ से होते हैं और मेरे ख्याल में हमें इस पर बड़े ज़िम्मेदाराना अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए। तालिबान ने नई हुकूमत संभाली है, वहाँ तो शायद मेरे ख्याल में अभी तक उतनी तजर्बा नहीं आया है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा तजर्बा है, बड़ा तहम्मुल है, ज़िम्मेदारी का एहसास है। हमें अपने हवाले से सोचकर मामला तय करने चाहिए। ये बताएं कि आप इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है मुल्क में इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ये नहीं सोच सकता कि किसी पार्टी के लिए माहौल अच्छा हो, किसी के लिए ख़राब हो, सबके लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, आप भी वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, आपकी सियासी एक कैंपेन का हिस्सा है, तो आप ये समझते हैं कि आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त मौजूद है? हम वर्कर्स कन्वेंशन तो मामूल के मुताबिक कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये लफ्ज़ जो हमारी इस्तिलाहात में आया है, हम इससे पहले भी ये काम करते रहे हैं। साइफर केस के हवाले से क्या कहेंगे? पहले हुकूमत कहती रही साइफर है नहीं, तो अब जो साइफर का इमरान खान पर फर्द जुर्म जो आयद होने वाले, इस हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा झूठ बोला था उसने। एक गैर ज़रूरी कागज़ उठा के उसने उसको इशू बनाया। अमेरिका का चमचा, अमेरिका का यहाँ पर उसका नुमाइंदा और उसका पुतला, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ चूरन बेच रहा था कि पाकिस्तान में ज़रा चूरन अच्छा बिकता है, तो उन्होंने चूरन बेचने की कोशिश की जो नाकाम हो गई थी। अब ज़राहिर का ऐसी बातों से कि जिसमें आलमी ताल्लुकात पाकिस्तान के मुतासर हो सकते हों और कौम से झूठ बोला जाता है, तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हम इसको सिर्फ एक कागज़ ही करार दें। इतना बड़ा झूठ कौम के सामने बोलना, इस पर ज़ाहिर है कानून तो कुछ कहता होगा जी। आप नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आप या आपकी जमात के कारकुनान इस्तकबाल के लिए
देखिए वो ये उनका मसला है, वो क्या पॉलिसी बनाते हैं, वो दूसरों को दावत देते हैं नहीं देते, अभी तक तो वो खुद अपनी पार्टी के हवाले से कर रहे हैं।